Hello everyone, good afternoon. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just our appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is very common on our skin, nails, and fungal infections, these diseases caused by a fungus, uh, yeast, or mold. So, mild skin infection can look like a rash and can be itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Niharika Jha, live from Delhi, to enlighten us on the topic of fungal infections. Dr. Niharika Jha is a MBBS, MDerm, Skin VD, gold medalist, dermatologist, and she has an experience of more than 7 years in this field. She has been a devoted specialist and aims to help people maintain the quality of their skin so that they can feel more confident about themselves. She has various national and international publications in the field of dermatology. Her keen attitude has led her to various national and international conferences where she got the opportunity to share and learn more about her dermatology. Dr. Niharika Jha is the founder, director of Dr. Niharika Skin and Health Clinic, Ishad Garden, Delhi. And today, Dr. Niharika Jha will share with us on fungal infection prevention and treatment. A very warm welcome to you, Dr. Niharika Jha. Thank you. Thank you so much. So today, doctor, we are going to talk about fungal infections. And one thing which we all know is fungal infections are very common, especially when it's hot and humid. और जिस तरह का मौसम चल रहा है, गर्मी है, the temperatures are really going high. Then in some part of various localities, it has also started to rain. और ये वो समय है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन के केसेस इस टाइम पे बहुत होने लगते हैं. So first of all, we would like to understand from you, Dr. Jha, that what is fungal infection? Actually, fungal infection नाम से ही पता चलता है. So fungal infections are the infections which are caused by fungi. And according to dermatology के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे skin, hair और nails तीनों पार्ट को affect कर सकता है. Most of the times ये itchy रहता है, but sometimes particularly जब ये हमारे nails को affect करता है, or some type of skin fungal infections also, they are not itchy, but most of the fungal infections they are itchy in nature. They itching more than तो फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है डॉक्टर, एज अ लेमन? अगर हम, क्योंकि कई ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जीज होती हैं जिसमें स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, रेडनेस होती है, रैशेस होते हैं, अनोइंग सिचुएशन में तो वो पेशेंट होता ही है. पहचान करें, कैसे करें कि ये जो हो रहा है ये फंगल इन्फेक्शन है? वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप के अपीयरेंसेस रहते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन वैरी करता है. पर जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है उसमें रेड कलर के रैशेस होंगे जो कि थोड़े से गोल आकार के रहेंगे और इट विल बी समवॉट राउंड इन नेचर, और उसमें थोड़ी सी पपड़ी जैसी बनेगी. सो दीस विल बी राउंड रेड लीशंस व्हिच विल बी पार्टली स्केली इन नेचर. हल्की सी पपड़ी दिखेगी. ये मोस्ट कॉमन अपीयरेंस है. अगर हम नाखूनों की बात करें तो नाखून में हल्का पीलापन आना या नाखून आसानी से टूट जाना, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कि नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या कई बार कालापन भी आ जाता है नाखून में. तो अगर आपके नेल्स का कलर चेंज हो रहा है तो ये भी एक निशान हो सकती है कि आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है. ये कुछ तरीके के रहते हैं. बाकी स्कैल्प में अगर हम सर के बारे में बात करें तो स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर बच्चों में ज्यादा कॉमन रहता है, और उसमें कुछ जगह से बाल चले जाते हैं और हल्की सी पपड़ी दिखती है वहां पर. तो ये कुछ कॉमन प्रेजेंटेशंस है जिस तरीके से हमारा फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट करता है. बिल्कुल. तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से एक लेमन होने के नाते हम पहचान सके कि जो हो रहा है वो फंगल इन्फेक्शन है, और बिना देर किए हमें एक डर्मैट के पास जाना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है. वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? जैसे आपने कहा स्कैल्प है, नेल है, ये तो है ही, लेकिन स्किन की अगर हम बात करें डॉक्टर, वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, कॉमन होता है?
देखिए वो जगह यहाँ पे पसीना ज़्यादा इजीली इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा देर रहता है। जैसे कि आपकी ग्रॉइन्स होगी, जो थाइस का अपर पार्ट हो गया, वहाँ पे पसीना ज़्यादा जल्दी इकट्ठा भी हो जाता है क्योंकि हम लोग चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे इजीली फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। वो लोग जो ज़्यादा देर तक के लिए बैठे रहते हैं, उनमें बटक्स एक बहुत कॉमन साइट है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन डेवलप करता है। एंड अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में चेस्ट के नीचे, बिकॉज अगेन यहाँ पे दो बॉडी सर्फेसिस मीट करते हैं, वहाँ पे स्वेट एक्यूमुलेशन बहुत कॉमन हो जाता है। तो वो फीमेल्स ये एक कॉमन साइट हो जाता है फीमेल्स में, चेस्ट के नीचे बहुत कॉमनली हो जाता है। एंड बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में साड़ी हो गया या सलवार सूट हो गया, हम वो कॉमनली पहनते हैं, और काफी टाइट कुछ लोग अपने फ्रिंज को, जो जिसको हिंदी में नाड़ा कहते हैं, वो काफी टाइटली टाई करते हैं। तो इन सारे राइट। एरिया पे स्वेट एक्यूमुलेशन बहुत इजीली हो जाता है और वहाँ पे फंगस भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो अगर मैं स्किन इन्फेक्शन के बारे में बात करूँ तो ग्रॉइन्स, बटक्स, जो हमारा एरिया जहाँ पे हम अपना थ्रेड टाइप करते हैं, या फिर फीमेल्स में चेस्ट के नीचे, ये कुछ कॉमन साइट है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। अदरवाइज तो ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट में इंक्लूडिंग फेस भी अफेक्ट कर सकता है, बट दीज आर दी मोर कॉमनली अफेक्टेड साइट्स। तो आपने बताया डॉक्टर कि वो कौन से बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आमतौर पर हम ध्यान भी दे सकते हैं कि अच्छा ये वो फोल्स हैं जहाँ पे नॉर्मली होता है, तो किस तरह से वहां हम कोशिश करें कि एयरी हो या बहुत ज्यादा मॉइस्चर या स्वेट अक्यूमुलेट ना हो। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर, हमेशा हम कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, स्पेशली मेडिकल फील्ड में तो ये बोला ही जाता है, और ये वो मौसम है, हम लगातार बोल रहे हैं जब फंगल इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते हैं। क्या प्रिवेंशन प्रिकॉशनरी मेजर्स हम अपना सकते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाए? देखिए, ये सबसे पहले समझना होगा कि फंगस वहाँ पे सबसे इजीली ग्रो करेगा जहाँ पे पसीना इजीली इकट्ठा होगा। जो मैंने आपको साइट्स भी बताए, वहाँ पे भी इजीली इकट्ठा हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको इतना स्वेट एक्यूमुलेट नहीं होने देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लोथिंग से स्टार्ट करें, जैसे ये समर सीजन है, ह्यूमिड सीजन काफी जगह पे शुरू हो गया है, तो आप लूज कॉटन की क्लोथ पहने जो कि एयरी रहे। आप जीन्स से ज्यादा ट्राउजर्स प्रेफर करें। आप ऐसी चीजें, ऐसे क्वालिटी के कपड़े पहने, ऐसे फैब्रिक के कपड़े पहने जो कि आपकी स्किन के लिए बेटर रहे। जैसे कि कॉटन क्लोथ को हमें सिंथेटिक क्लोथ से ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, या फिर टाइटली बॉडी हगिंग क्लोथ से वो अवॉइड करने चाहिए, और हमें लूज फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये तो सबसे पहले होंगे कि हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। सेकेंडली, हमें अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, एवरीडे बाथ लेना चाहिए। एंड स्पेशली जो हमारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे दो सर्फेसेस आपस में टच करते हैं, उनको प्रॉपर्ली ड्राई करना चाहिए नहाने के बाद। कई बार क्या करते हैं कि लोग नहा के निकलते हैं, जल्दी जल्दी टावल से साफ करके अपने आप को ड्राई करके दे वेयर देयर क्लोथ्स एंड देन दे गो फॉर देयर वर्क और व्हाटसोएवर। लेकिन जो हमारे ऐसे एरियाज होंगे जैसे पैरों की उंगलियों के बीच में, वो अच्छे से साफ नहीं करते, जांघों के बीच में वो अच्छे से सुखाते नहीं है, एक जगह पे पानी की वजह से वहाँ पे गीलापन हो जाता है, और ये गीलापन ही जो है वो फंगस की तरफ, फंगस वहाँ पे इजीली ग्रो कर जाता है। तो मेक श्योर आफ्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक बाथ ऑन अ डेली बेसिस, एंड देन आपने जब बेसिंग कर ली है अपनी, तो प्रॉपर्ली उसको ड्राई भी करना चाहिए। थर्डली, ऑब्वियसली स्वेट से हमें अपने आप का बचाव करना है, तो कैसे करेंगे? अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ एक सेपरेट कॉटन का क्लॉथ रखिए, छोटा सा टाल भी रख सकते हैं, ताकि एक जगह पे ज्यादा देर तक के लिए पसीना ना जमा हो। तो बीच बीच में पोंछते रहें, और अगर आप घर पर हैं तो कोशिश करें वहाँ पे थोड़ी देर हवा लगे, इस वजह से आपका फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो नहाना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, थोड़ा ड्राई मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। और ऑब्वियसली यू हैव टू take care of the kind of clothes you are wearing. They should be loose fitted and they should be of cotton, definitely. बिल्कुल, तो पर्सनल हाइजीन गोज अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन। नाउ डॉक्टर, वी ऑल नो हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है कि अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ, भी तो फंगल इन्फेक्शन या कुछ और, या कोई एलर्जी हुई स्किन पर, तो हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय सबसे पहले कोई होम रेमेडी करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, रिलेटिव से पूछते हैं। अगर उनको भी वैसा ही कुछ हो चुका होता है, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया होता है, तो कई बार वही प्रिस्क्रिप्शन हम फॉलो करने लगते हैं।
केमिस्ट शॉप्स बहुत इजीली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, वहां चले जाते हैं, ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशंस ले लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन के केसेस में भी ये बहुत आम है। आई एम श्योर आपके भी ऐसे कई पेशेंट्स आते होंगे जिन्होंने पहले सेल्फ मेडिकेशन कर लिया होता है, तो ऐसे में कितना फर्क पड़ जाता है? एक कोई फ्रेश केस है, अभी फंगल इन्फेक्शन हुआ, 1-2 दिन हुए हैं, इचिंग नहीं सह रही है, वो डॉक्टर के पास गए, या फिर वो जो उन्होंने होम रेमेडी कर ली, दूसरी दवाई लगा ली, टॉपिकल एप्लीकेशन कर लिया, फिर वो डॉक्टर के पास गए, कितना फर्क आ जाता है और कितना मुश्किल वो ट्रीटमेंट हो जाता है? देखिए बहुत फर्क पड़ जाता है। एक टिपिकल फंगल का लीशन पहचानना और उसको ट्रीट करना बहुत सिंपल होता है। वो पूरा एक जो कोर्स हम कहेंगे ना, इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर द पेशेंट एज वेल एज फॉर द डॉक्टर। पर मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में क्या होता है, जैसे कि आपने कहा, वो ईदर दे विल विजिट अ क्वैक और दे विल विजिट द नियरेस्ट केमिस्ट शॉप। तो जो केमिस्ट शॉप वाले रहते हैं वो यूजुअली उनको एक कॉम्बिनेशन दवाई दे देते हैं। कॉम्बिनेशन दवाई में आपका आ जाएगा पैंडम, कॉर्टिडोम, फोड्राम, जिसमें क्या रहता है कि ठीक है एक एलिमेंट होगा एंटी फंगल रहता है, पर उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट स्टीरॉइड भी रहता है। अब ये स्टीरॉइड क्या करता है कि थोड़े दिन के लिए आपके फंगस को छुपा देता है, वो खत्म नहीं करता है, उसको छुपा देता है। तो पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया, लेकिन जैसे वो दवाई छोड़ते हैं वो और भी ज्यादा फंगस पे निकल के आ जाता है। प्लस एक स्टीरॉइड लगाया हुआ जो फंगस है वो देखने में टिपिकल फंगल इन्फेक्शन जैसा नहीं दिखता। तो कई बार जब आप ऐसी गलत दवाइयां लगा कर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो पहचानने में भी फिर गलती हो सकती है और आपके डायग्नोसिस में डिले हो सकता है और उसकी वजह से आपके ट्रीटमेंट में भी डिले हो सकता है। एक जो बहुत कॉमन पार्ट हम लोगों ने देखी है इंडिया में, जैसे मैं बात करूं तो कुछ क्वाक्स जो रहते हैं अनफॉर्चुनेटली इसके लिए स्टीरॉइड के इंजेक्शन भी देते हैं, और कुछ पेशेंट के तो इतने स्टीरॉइड के इंजेक्शन लिए रहते हैं कि उनको प्रॉपर स्टीरॉइड के होने की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होने वाले रहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। मोटापा आ जाता है, शुगर हो जाता है, बीपी हो जाती है, जो उनका नेक है उधर हम्प आ जाता है, और मतलब बहुत तरीके की दूसरी परेशानियां भी डेवलप हो सकती है। ये तो बस एक स्किन की इन्फेक्शन है। चलिए आपका देर सवेर कभी ना कहीं भी अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो पहचान करके आपको सही ट्रीटमेंट दे देंगे, लेकिन जब आप एक जरूरत से ज्यादा मात्रा में जो आप स्टीरॉइड इंजेक्शन अगर ले लेते हैं तो वो आपके बॉडी के ऊपर काफी गलत असर भी डालता है। ये कारण की वजह से प्लीज किसी क्वैक के पास ना जाएं, केमिस्ट के पास ना जाएं, ना तो ये आपके ट्रीटमेंट में बस डिले कॉज करेगा, उसको ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ा देगा, प्लस अगर आप इंजेक्टेबल दवाइयों के लिए ऑप्ट करते हैं तो फिर ये आपको दूसरी तरीके की साइड इफेक्ट भी दे सकता है। तो मेरे तो यही सलाह है कि आप प्लीज किसी क्वैक के पास ना जाएं। और जहाँ तक बात है कि अगर किसी एक पेशेंट ने दवाई ली और वही प्रिस्क्रिप्शन किसी और ने फॉलो कर लिया, तो स्पेशली बच्चों और बड़ों के केस में हम ये कहते हैं कि वो डोज के जो है आपके वेट के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे बच्चों में हम लोग वेट के अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ देते हैं, तो आप ज्यादा डोज की दवाइयाँ बच्चों को दे देंगे या बच्चे की दवाई फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से कम दवाई मिलेगी। इस वजह से प्लीज एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही अपना प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि क्वैकरी में हम ना पड़े, बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन में हम ना पड़े, होम रेमेडीज़, ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे कैन एंड अप हार्मिंग अस मोर, और हमारे जो कंडीशन है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो और ज़्यादा वर्स हो सकता है। तो ये ना करके हमें सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाना है। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है डॉक्टर इन्फेक्शन लेकर, ऑफ कोर्स पेशेंट को तो नहीं पता शायद कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है या कुछ और हो गया है, क्या है, कितना ग्रेड का है, तो आप एज अ डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं डायग्नोस करने के लिए, और जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यू कैन से कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है एंड देन यू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट? So most of the patients में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, तो इसलिए कोई कंफर्मेटिव टेस्ट हम नहीं कराते हैं। बट ये कभी अगर हम डायग्नोस्टिक डायलेमा में रहते हैं तो एक टेस्ट अवेलेबल रहता है जिसको हम लोग KOH कहते हैं, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें पोटेशियम आपके थोड़ा सा स्किन सैंपल लेकर के जो कि पेनफुल नहीं रहता है बिल्कुल भी, या अगर नाखून के बारे में या बाल के बारे में कह रहे हैं तो क्लिपिंग लेकर के उसको KOH के साथ मिक्स करके हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, तो उससे एक तरीके का कंफर्मेशन हो जाता है। ये तो आपके कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस के लिए रहता है।
बाकी मोस्ट ऑफ द पेशेंट जैसे कि मैंने कहा कि वो इधर-उधर से कोई ना कोई दवाई खा कर के आए हुए रहते हैं, तो इन दोज़ पेशेंट्स मैं पर्सनली सीबीसी और एलएफटी का टेस्ट ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि ये सारे जो आपके फंगस से आपके लिवर के ऊपर थोड़ा-सा इफेक्ट डालते हैं। तो अगर आपने पहले में से बहुत से तरीके की दवाइयाँ ले रखी रहती है, तो आपका एक लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, तो इससे आइडिया रहेगा कि अभी आपका लिवर के लिए ये डोज़ ऑफ दवाई सही है या आपकी डोज़ ऑफ दवाई बदलनी होगी या फिर इसके ऊपर एंटी फंगल की तरफ हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बट अगर कंफर्मेशन की बात करें तो हाँ, केओएच ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए? किस तरह से आप ट्रीट करते हैं डॉक्टर? देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन तो आपके 2 तरीके में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं सिम्प्टोमैटिक रिलीफ। सिम्प्टोमैटिक रिलीफ मतलब जो एक मेन सिम्पटम है, जैसे कि आपके खुजली होना, तो उसको रोकने के लिए एक मेडिसिन देनी रहती है, बाकी एंटी फंगल रहता है, ओरल या और टॉपिकल, खाने वाली और लगाने वाली। अब वो आपके पेशेंट को देख कर के हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए हम एक अलग ग्रुप ऑफ एंटी फंगल क्या कहते हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल रहती हैं, उन्हें हम सारे के सारे एंटी फंगल नहीं दे सकते। सिमिलरली कोई फीमेल ऐसी है जो डिलीवर कर चुकी है, दूध पिला रही है अभी बच्चे को, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी फंगल हम लोग प्रेफर करते हैं। तो वो पेशेंट को डिसाइड करके हम देख करके डिसाइड करते हैं कि इनको किस तरीके की एंटी फंगल ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी और क्या कहते हैं बाकी लगाने वाली कुछ दवाइयाँ रहती हैं। जी। डॉक्टर, हमेशा ये हम सब जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस होता है। अगर एक को हुआ है तो खतरा है कि दूसरे को भी उससे हो जाएगा। फैमिली में अगर कोई मेंबर है जिसे फंगल इन्फेक्शन है, तो एक तो जिसे हुआ है वो पेशेंट क्या करे, जो घरवाले हैं या जो और दूसरे लोग हैं जो साथ में रह रहे हैं या संपर्क में आ रहे हैं, वो किस तरह से सावधानी बरतें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में फैमिलीज में ऐसे देखा है कि किसी एक को शुरू होता है वो धीरे-धीरे सब में फैल जाता है। तो इन दैट जी। केस सबसे पहले तो जिस मेंबर को सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन हुआ, उनके कपड़े, टॉवल, सोप ये सारे अलग रहने चाहिए। ये नहीं कि पूरा फैमिली एक ही टॉवल, एक ही सोप यूज़ कर रहा है। ये सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है कि एक ही इंसान से सबको फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है। उनके कपड़े अलग धुलने चाहिए। उनके मतलब कि ऐसा नहीं कि सारे फैमिली मेंबर्स के कपड़े साथ में धुल रहे हैं। अगेन उससे क्या होता है कि एक से दूसरे जगह हो जाता है। इन सच केसेस में यूजुअली कहती हूँ कि सोप की जगह ना बॉडी वॉश एक्चुअली यूज किया करें, क्योंकि क्या रहता है कि जब हम सोप से क्लीन करते हैं, भले वो एंटी फंगल सोप ही क्यों ना हो, तो वहां पे अगर आप या कोई और उसको दोबारा यूज करते हैं तो रीइंफेक्शन के चांसेस और एक जगह से दूसरे जगह को भी फैलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली सारा सामान अपना सेपरेट यूज करें, आपके कपड़े, आपके डाल, आपके सोप और ये सारे सेपरेट हैं और उन क्या कहते हैं जो उनके कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं डेली वेयर के, वो भी अलग से गर्म पानी में धो करके धूप में सुखाने चाहिए, ताकि दूसरे जनों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। मॉनसून क्योंकि आने वाला है, कई ऐसे जगह हैं, शुरू में भी हमने बात की है जहाँ पे पानी गिरना थोड़ा बहुत शुरू भी हो चुका है और ऐसे में कपड़े सूखना, सुखाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगेन वी नो कि अगर अच्छे से नहीं सूखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो क्या हम कर सकते हैं डॉक्टर? देखिए सबसे पहली बात तो जब आप जिस पेशेंट को है फंगल इन्फेक्शन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, मैं उनको एक दो बातें जरूर बोलती हूँ कि आप जब अपने कपड़े धोते हैं उसको उल्टा करके सिखाएं। उल्टा करके नहीं, जो आपके बॉडी पार्ट को टच करता है वो साइड बाहर की तरफ रहनी चाहिए, सनलाइट उसके ऊपर पड़नी चाहिए। बेसिकली यू हैव टू ड्राई दैट इनसाइड आउट। आज अगर आपने कोई क्लोथ धोकर के सिखाया तो उसको 4 to 5 डेज तक दोबारा रीयूज ना करें। अगर आप वही कपड़े बारी-बारी पहनते रहते हैं, स्पेशली जो हमारे रात में पहनने वाले कपड़े रहते हैं, नाइट सूट्स वगैरह रहते हैं, तो वो बारी-बारी रिपीट हो जाते हैं, या फिर जीन्स भी लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिपीट कर देते हैं। पर अगर 4 to 5 डेज तक अगर आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो री-इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, बारी-बारी सेम क्लोथ पहन के, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। किसी रीज़न की वजह से अगर आपको दोबारा यूज़ करना पड़ गया, वो जो भी क्लॉथ है, तो आप उसको अंदर की तरफ से आयरन करके पहनें। यही बात उनको भी कहती थी, बरसात का मौसम है, आपको हो सकता है वो जो भी आपने सुखाया आपको शायद पहनने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको अंदर की तरफ से आयरन करके, ड्राई करके फिर ही पहनें। इस तरीके से आपके री-इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएँगे और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली ड्राई करेंगे और फिर पहनेंगे, तो अगेन आप फंगल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा भी सकते हैं।
बिल्कुल। ये भी यहाँ पे जानना चाहेंगे डॉक्टर आपसे, फंगल इन्फेक्शन के केसेस में रिकरेंस भी बहुत कॉमन देखने जी। को मिलता है, जैसे एक बार हो गया उसे बार-बार हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है और इससे किस तरह से बचें? ये फंगल इन्फेक्शन में रेकरेंस का सबसे बड़ा कारण रहता है कि पेशेंट दवाइयाँ अपनी पूरी नहीं करता है। जैसे कि हम उनको कहते हैं 2 या 3 हफ्ते की दवाइयाँ दे कर के भेजते हैं, उनको लगता है अब मैं ठीक हो गया और फिर उसके बाद वो दोबारा रिवर्ट बैक नहीं करते। जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज़ जिसकी वजह से रिकरेंस तो होता ही, एक बार ठीक हो गया फिर दोबारा निकल के आ गया थोड़े दिन के बाद। दिस इज़ आल्सो अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट कॉमन कॉज़ फॉर रेसिस्टेंस। अगर मैं बात करूँ कि पहले अभी से काफ़ी 7-8 इयर्स पहले की बात करूँ, तो हमें जो स्ट्रेंथ ऑफ एंटी फंगल देनी पड़ती थी वो कम देनी पड़ती थी और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी कम रहता था। बट बीच में ऐसा टाइम आया जब एंटी फंगल रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया कि हमें डोज ऑफ मेडिकेशन भी बढ़ानी पड़ गई और जितनी ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है वो भी बढ़ाना पड़ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज आपकी जितनी कोर्स है, जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं कहते कि अब आप दवाइयाँ बंद कर दीजिए, अपने आप से दवाइयाँ मत बंद कीजिए, नहीं तो वो फंगस दोबारा लौट कर जाएगा और फिर अगर हम दोबारा वही एंटी फंगल देना चाहेंगे तो शायद वो आपके लिए काम नहीं करे। पहली बात ये। दूसरी बात ये, यही मैंने कहा कि लोग अपने कपड़े प्रॉपर्ली ड्राई नहीं करते, सेम क्लोथ्स बारी-बारी रिपीट करते रहते हैं। उस वजह से रीइंफेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। थर्ड थिंग इज ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया ग्रोइन और अपर थाई कॉमन रीजन है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो अगर कोई एक ओबीस पर्सन है तो वहाँ उनको स्वेट एक्यूमुलेशन या फ्रिक्शन, बिकॉज जब चलेंगे तो दो थाई जब आपस में रब करती है उस वजह से फंगल इन्फेक्शन बारी बारी हो सकता है। तो अगर अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे या इस तरीके की क्लोथिंग पहनेंगे कि थाइस आपस में ना रब करे तो वो अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। लेकिन जो भी करें दवाइयाँ जरूर कंप्लीट करें। एक बार अगर आपने शुरू किया है कोर्स, ये मैं सोचे कि अभी ठीक हो गया 2 हफ्ते के बाद अब दवाइयाँ बंद कर देता हूँ, इसका कोर्स जरूर पूरा। ये आपने बहुत सही बात बोली। वाक़ई में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि अगर हम मान लीजिए हमें 1 महीने की दवाई मिली और 2 हफ्ते में हमें लग रहा है कि अरे हमारे तो फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया या अब आराम हो गया है, तो हम अपने आप बंद कर देते हैं। फिर अगर सिम्पटम्स लगते हैं तो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, उन्हें लूप में लेते ही नहीं है। उनको बताते ही नहीं है कि हमने बंद कर दी थी और हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो ये सब सेल्फ मेडिकेशन की कैटेगरी में आता है और वो बहुत डेंजरस हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर निहारिका झा बता रही है। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन डॉक्टर, ये भी फंगल इन्फेक्शन ही है मेरे ख्याल से। इसके जी बारे में हम चाहेंगे अगर आप थोड़ा बताएं। देखिए, ये जो फंगल इन्फेक्शन जो कैंडिडियासिस बेसिकली हम लोग कहते हैं, कैंडिडियासिस यूजुअली आपके अफेक्ट कर सकता है ओरल कैविटी में और ये आपके ज़्यादा फैल जाए तो थ्रोट में भी जा सकता है। मेल्स में जेनिटल एरिया जो पेनाइल एरिया और फीमेल में वजाइनल एरिया को। इसके कॉमन कॉजेस कौन-कौन से रहते हैं? अगर मैं ओरल कैविटी के बारे में बात करूँ तो वो पेशेंट क्योंकि लंबे समय से एंटीबायोटिक्स पर हैं या फिर स्टीरॉयड ट्रीटमेंट पर है, जो भी उनकी बीमारी है उसके लिए उनमें थोड़ा ज़्यादा कॉमन कॉमन रहता है और जो अपने ओरल हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते। अगर मैं वजाइनल एरिया के बारे में बात करूँ तो वजाइनल एरिया में जो कैंडिडियासिस रहता है वो यूजुअली गीलेपन की वजह से होता है। तो गीलापन कैसे डेवलप होता है वहाँ पे? अगेन नहाने के बाद आपने प्रॉपर्ली सुखाया नहीं या फिर आपने वॉशरूम यूज़ किया, आपने उसको क्लीन किया, आपने प्रॉपर्ली उसको ड्राई आउट नहीं किया, कपड़े दोबारा पहने फिर वो गीला का गीला ही रह गया। पीरियड्स के बाद बहुत कॉमनली हम लोग को देखने को मिलता है क्योंकि क्या रहता है कुछ फीमेल्स अपने पैड्स बहुत रेगुलरली जैसे 4 to 5 आवर्स में चेंज करना चाहिए, वो नहीं करती, तो वो गीला पैड ही कंटिन्यू करती रहती है। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे जो कैंडिडियासिस है वो ज़्यादा कॉमन हो जाता है। डायबिटिक्स में भी ये बहुत कॉमन रहता है। इनफैक्ट काफ़ी ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं जो कि उनको पता नहीं कि वो डायबिटिक है, लेकिन क्योंकि वो रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होता रहता है पेनाइल एरिया मेल्स में या फिर फीमेल्स में वेजाइनल एरिया, तो वहाँ से हम लोग को उनका अगर शुगर टेस्टिंग कराते हैं तो वो बढ़ा हुआ होता है। मेल्स में पेनाइल एरिया की बात करें तो अगेन डायबिटिक्स में बहुत कॉमन रहता है और वो लोग क्योंकि प्रॉपर्ली क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करते हैं, हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, उनमें भी कॉमन रहता है। तो ये कॉमन एरियाज है और कॉमन कॉजेज है कैंडिडियासिस की। डॉक्टर, पब्लिक टॉयलेट से भी क्या, अगर पब्लिक टॉयलेट का यूज करते हैं उससे भी क्या फंगल इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं?
देखिए अगर तो सी दिस विल बी मोर कॉमन इन फीमेल क्योंकि वो वी हैव टू सिट डाउन टू Yeah. यूरिनेट। तो Hmm. अगर हमसे पहले कोई ऐसा इंसान यूज करके गया है वॉशरूम जिसमें जिसके थाई एरिया पे फंगल इन्फेक्शन है और हम वहाँ पे बैठते हैं तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट हमें भी हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जैसे कि वो स्प्रेस रहते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं बिफोर यूजिंग दी वॉशरूम या फिर क्या कहते हैं टी सेफ के कुछ टॉयलेट कवर्स भी आते हैं। ये Right. कल्चर जो है ये यूएस में काफी कॉमन है टॉयलेट कवर्स का। इंडिया में Mhm. अभी अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो Hmm. अगर हम वो यूज करेंगे तो कॉन्टैक्ट की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन या अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो रहते हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं जहाँ तक हो सके। पब्लिक टॉयलेट स्पेशली ऐसी जगह पर जैसे सिनेमा हॉल्स हो गए या फिर मॉल्स हो गए या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है कम से कम यूज करें तो वो बेटर है पर समटाइम्स वी डोंट हैव एन ऑप्शन सो वी शुड कैरी इफ वी आर गोइंग आउट इन अ पब्लिक प्लेस तो कोशिश करनी चाहिए कैरी करने की। फीमेल के लिए इट हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। डॉक्टर, कई बार वो पेशेंट जिन्हें फंगल इन्फेक्शन हुआ है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, वो पूछते हैं कि क्या हम जिमिंग कर सकते हैं, क्या हम स्विमिंग कर सकते हैं, ये कितना सेफ होगा दूसरों के लिए खास तौर पर। नहीं, अगर आपको इन्फेक्शन है बॉडी में तो आइडियली यू शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग हम्म। क्योंकि ये दूसरे के लिए तो होगा ही होगा लेकिन आपका भी गीलेपन की वजह से और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट गेट ट्रीटेड, वेट फॉर अनदर 2 वीक्स एंड देन मे बी यू कैन रीस्टार्ट इट एंड मेक श्योर करें कि जब भी आप स्विमिंग से के सेशन से वापस आए प्रॉपर्ली ड्राई करके बॉडी को फिर अपने स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन का आपने जिक्र किया डॉक्टर, आपने कहा कि बच्चों में बहुत कॉमन है, थोड़ा हम चाहेंगे और डिटेल में आप इस पर बात करें। ये स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन अगेन बहुत टाइप के रहते हैं इसको हम लोग टीनिया कैपिटिस कहते हैं। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें क्या रहता है कि राउंड राउंड पैचेस से बाल चले जाते हैं। ठीक है तो कुछ कुछ जगह पे डॉट डॉट दिखते हैं या कहीं पे बाल हल्की ग्रेश वहाँ पे हल्का ग्रेश कलर जैसा दिखेगा या हल्की पपड़ी जैसी बनेगी। तो इसी का एक बहुत ही क्लोज डिफरेंशियल रहता है जिसको हम एलोपेशिया एरियाटा भी कहते हैं वो फंगल इन्फेक्शन नहीं रहता है। तो पहली बात तो कभी भी आपकी जैसे बाल गए हैं बच्चे के तो वो पहले चेक करा कि ये फंगल इन्फेक्शन है या एलोपेशिया एरियाटा क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट काफी अलग रहता है। इसके अलावा कुछ और सिवियर फंगल इन्फेक्शन भी रहते हैं स्कैल्प के जिसमें क्या रहता है कि सूजन आ जाती है क्या कहते हैं सर के ऊपर और वहाँ पे काफी पस पॉइंट बन जाते हैं तो वो थोड़ा पेनफुल भी रहता है वहाँ पे पस भी निकलता रहता है। इसमें दवाई से तो ये ठीक हो जाएगा पर अगर आपने ट्रीटमेंट लेने में इसे डिले कर दिया तो क्या होता है कि बालों के फॉलिकल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां जहां से बालों के फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है वहां पे दोबारा बाल आना क्या कहते हैं कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ टाइप के है फंगल इन्फेक्शन में कुछ माइनर रहते हैं और कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूजन आ जाती है पस पॉइंट बन जाता है वो काफी पेनफुल भी रहता है बच्चे के लिए उसकी वजह से कई बार इन्फेक्टेड सेकेंडरी इन्फेक्टेड हो जाता है तो बुखार वगैरह भी आता है इस टाइप की बिल्कुल। स्कैल्प फंगल। कई लोग क्योंकि उनको पता नहीं अगेन कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि ड्राई स्किन है कि डैंड्रफ है, डैंड्रफ भी कभी कभी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो ऐसे में एक जो कल्चर है हमारी सोसाइटी में कि हम सर पे तेल लगा लेते हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम सर में नजर आती है पर हम सर में तेल लगा लेते हैं, हमको लगता है ये बेस्ट सोल्यूशन है। बट अगर फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि हमें नहीं पता एज अ लेमन, तो क्या वो तेल हेल्प करेगा या कहीं उस फंगल इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा तो नहीं देगा? एक्चुअली जब बालों में फंगल इन्फेक्शन है इवन इफ आई टॉक अबाउट डैंड्रफ तो हम हेयर ऑयलिंग मना करते हैं क्योंकि हेयर ऑयलिंग से ये चीज बढ़ सकती है। इवन डैंड्रफ भी ना बढ़ता है हेयर ऑयलिंग के बाद से। तो जब ये प्रॉपर ट्रीट हो जाए उसके बाद यू कैन कंसिडर ऑयलिंग योर हेयर अगेन। लेकिन जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या ये प्रॉब्लम है आपने ऑयलिंग ऑफ हेयर अवॉइड करनी है तो नहीं करनी है। ऐसे ही नेल का जो फंगल इन्फेक्शन होता है डॉक्टर, वो कौन लोग हैं जिनमें ज्यादा रिस्क रहता है फंगल इन्फेक्शन होने का नेल्स में? देखिए नेल्स में अगर मैं बात करूँ तो अगेन फीमेल्स जो है उनमें ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है कि सीजन की वजह से पानी के काम की वजह से तो वो क्या कहते हैं कपड़े धोना हो गया यूटेंसिल्स साफ करने हो गए
रेगुलर क्लीनिंग वगैरह का हो गया, तो उसकी वजह से हैंड्स बारी-बारी जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं। जब वो गीले हो जाते हैं तो जो हमारा क्यूटिकल रहता है ना, क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाता है और जो स्किन और नेल के बीच में हल्का सा गैप बन जाता है, जिसकी वजह से पानी वहाँ पे जाके इकट्ठा होता रहता है। तो स्किन तो डैमेज हो ही रही है, साथ में वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी नाखूनों का इजीली हो जाता है। तो अगेन अगर आप कोई भी वाटर रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें किचन ग्लव्स को यूटिलाइज करने के लिए। इनिशियली आई कैन अंडरस्टैंड डिफिकल्टी होती है बिकॉज हमारे को उस चीज की आदत नहीं रहती, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम उसकी हैबिट डालने की कोशिश करेंगे तो हम अपने को काफी हद तक फंगल इन्फेक्शन से बचा पाएंगे। तो एक हैंड्स को ड्राई रखना, ज्यादा गीला रहने की वजह से इसलिए हाउस वाइफ में, फीमेल्स में या वॉशर वुमेन्स में ये काफी कॉमन रहता है। इवन हाथ के और पैरों के भी नाखून में। मेल्स में जो है पैरों में यूजुअली उनमें ज्यादा कॉमन रहता है जो क्लोज शूज ज्यादा पहनते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि क्लोज शूज ना ना यू नो थोड़ा सा अवॉइड करें, वो बेटर रहेगा। और अगेन वाटर रिलेटेड वर्क तो देखिए है हम सभी का ही है, और थोड़ा हमारा क्या कहते हैं क्लीनिंग वर्क ज्यादा रहता भी है। इस कारण की वजह से आपको क्लीनिंग वर्क कीजिए, लेकिन ग्लव्स पहन के कीजिए और काम खत्म होने के बाद उसको प्रॉपर्ली ड्राई करके और मॉइस्चराइज करें। पानी के गीला ना रहने, देखिए अपने आप हवा में सूख जाएगा, उस वजह से फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन हो जाता है। नेल का जो फंगल इन्फेक्शन है डॉक्टर, इसके इलाज में कितना वक्त लगता है? क्या स्किन फंगल इन्फेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा वक्त लेता है नेल फंगस ठीक होने में? डेफिनेटली देखिए अगर हम हाथों के नाखून के बारे में बात करें तो जो नेल का सबसे निचला हिस्सा है वो ऊपर आने में लगभग 6 मंथ लग जाता है। सिमिलरली पैर का जो नाखून है ऊपर सबसे नीचे से ऊपर तक आने में 9 से 12 महीने लग जाते हैं। इसीलिए वो फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ठीक करने में हमें ज्यादा समय लगता है। सो वी गिव अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एंटीफंगल फॉर द fingernail fungal infection, and for the toenail can vary from 9 to 12 months। बट ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप की एंटी फंगल दे रहे हैं। कुछ एंटी फंगल का कोर्स वीकली रहता है, हफ्ते में एक ही बार देना रहता है, कुछ ऐसे रहते हैं जो दिन में एक ही बार देना रहता है, कुछ ऐसे रहते हैं दिन में 2 बार देना रहता है। तो उसकी वजह से भी हम लोग का ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वैरी कर सकता है। पर अगर हम ओवरऑल देखें तो स्किन के मुकाबले हम लोग को ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ता है फॉर दी फिंगर एंड द टो नेल्स, बिकॉज उसकी ग्रोथ रेट हमारी जो नेल्स की रहती है वो थोड़ी सी स्लो रहती है, स्पेशली टो नेल्स। और ऐसे ही क्योंकि इससे पहले आपने शूज का जिक्र किया था, जो लोग शूज पहनते हैं उनके टोज के बीच में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी बहुत कॉमन होता है। डेफिनेटली उनको भी, बिकॉज अगेन दो शूज के शूज भी एक पॉइंटेड रहते हैं, थोड़े से ब्रॉड सामने से ब्रॉड रहते हैं। And there are a few patients who are working in offices. They say that I cannot wear Crocs to my work, I cannot wear chappals to my work. तो उनको मैं ये कहती कि जब भी मौका मिले अपने सॉक्स और शूज उतार के थोड़ा सा अपने फिंगर्स को मूव करें ताकि यहाँ पे एरेशन हो। अगेन जब वो नहा करके निकले तो मेक श्योर करें कि उंगलियों के बीच में भी साफ करें ताकि वहाँ पे पानी ना जमा रहे। कुछ लोग की क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो शूज पॉइंटेड रहते तो वो नाखून आई मीन जो फिंगर नेल्स है वो ज्यादा क्लोजली आपस में ऐसे हो जाते हैं, तो अगेन वापस स्वेट इंट्रैपमेंट पड़ जाता है। तो उसको मेक श्योर करें कि बीच बीच में थोड़ा सा एरेट कर लें। एक एक्चुअली कुछ लोगों की फिंगर्स ही ऐसी रहती है कि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रहती है। अब वो बेचारा ओपन शू पहने, क्लोज शू पहने, चप्पल पहने, कुछ भी पहने, उनकी उंगलियां ही ऐसी है। तो उस चीज में हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि जिस दो फिंगर आई मीन टोज के बीच में आपको फंगल इन्फेक्शन बारी बारी हो रहा है, वहाँ पे हल्का कॉटन रख दें ताकि वहाँ पे स्वेट जो है एब्जॉर्ब होता रहेगा और आपकी रिकरेंस के चांसेस थोड़े से कम किए जा सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिले इन्हें इसको ओपन रखिए जितना हो सके। बिल्कुल। कई सवाल हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, जवाब जानना चाहते हैं, कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। मीनल वर्मा है, शुड आई बी मोर केयरफुल इन सर्टेन एनवायरनमेंट्स? तो वो कौन से एनवायरनमेंट्स हैं जहां पर ये ज्यादा बढ़ सकता है फंगल इन्फेक्शन? देखिए जो हमारा विंटर सीजन रहता है उसमें जो बहुत गीलापन या फिर पसीना आना ये सब कम हो जाता है तो अपने आप फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है। अभी पर्टिकुलरली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत गर्मी हो रखी है, ह्यूमिडिटी की काफी
कुछ पार्ट्स में हो रखी है, तो वो एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको ज्यादा स्वेटिंग होगी वहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, अजीत सिंह है, पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंस इफ द इन्फेक्शन डजंट क्लियर अप कंप्लीटली। तो मतलब आप ठीक नहीं हुए हैं, देयर कैन बी टू रीजंस, ईदर यू हैव लेफ्ट द ट्रीटमेंट बिफोर इट हैज एक्चुअली सबसाइडेड और वो दोबारा रेकर किया है, या ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने भी बात भी करी थी कि एंटीफंगल का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ गया है, तो हो सकता है कोई एक एंटीफंगल सूट ना किया हो और आपको दूसरे एंटीफंगल पे शिफ्ट करना होगा, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर्ली क्लियर अप हो सके। गिनी है हमारे साथ, उनका सवाल है इज इट सेफ टू यूज एंटी फंगल क्रीम ऑन माय स्कैल्प? हाँ यूज कर सकते हैं, मतलब लेकिन आप पहले रेगुलर बेसिस में why will you use it? If you have a fungal infection, please get it diagnosed because if you are having a fungal infection of the scalp, वो आपके बस लगाने वाली दवाइयों से नहीं जाएगा, आपको सिर्फ खाने वाली दवाइयाँ भी चाहिए। यश नामदेव का सवाल है इज देयर एनीथिंग आई शुड वेयर और अवॉइड वियरिंग टू प्रिवेंट रिकरेंस? Yes, as I told you, you should be wearing clothes made up of cotton fabric. They should be loosely fitted clothes. They should not be very tight. And जैसे जेंट्स में हम कहते हैं कि अगर आप बेल्ट वगैरह टाई कर रहे हैं तो बहुत टाइटली टाई ना करें ताकि थोड़ा बहुत एरेशन बना रहे। जीन्स के ऊपर कॉटन ट्राउजर्स प्रेफर करें और जब घर पर हैं तो लूजली फिटेड क्लोथ्स पहनें। पूजा विश्वकर्मा, उनका सवाल है मैम कैन दिस इन्फेक्शन अफेक्ट माय माउथ और थ्रोट? कि जैसे कि मैंने बताया था कैंडिडियासिस एक तरीके का फंगस रहता है जो आपके माउथ और थ्रोट को अफेक्ट कर सकता है, जो जैसे प्रीडोमिनेंटली हमने बात करी स्किन इन्फेक्शन की, वो अलग तरीके का फंगस रहता है, वो सेम फंगस नहीं कर सकता, लेकिन जो कैंडिडा रहता है वो अफेक्ट कर सकता है। Okay. And doctor, before we sum up the whole session, any take home message, कोई संदेश जो आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? कि गर्मियाँ बहुत है, so obviously please take care of your health and your skin. This can be actually avoided by wearing the right clothes and keeping your body dry and preventing it from sweat. Whenever you develop any kind of rash or any kind of skin infection, please refer to a dermatologist. Please go to a dermatologist because अगर आप random quack के पास जाएंगे, हो सकता है कोई initial few days के लिए आपको magical improvement दिखेगा, तो वो magic नहीं रहता है. Most of the time, people are using wrong medications, which can actually put, which can actually make your situation even more worse. एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगी, क्वैक्स रहते हैं बहुत यूजुअली यूज करते हैं जालिम लोशन, तो जालिम लोशन क्या रहता है स्किन को बर्न आउट कर देता है, तो वो पपड़ी पपड़ी करके निकाल देते हैं, तो ये उनका तरीका है फंगल इन्फेक्शन ठीक करने का. कई बार उसका रिएक्शन इतना सिवियर हो जाता है कि वहाँ पे स्किन एक्चुअली बर्न हो जाती है, तो पहले तो बस फंगस ही था, अब फंगस के साथ साथ बर्न भी ट्रीट करना पड़ता है. तो आई यूजुअली टेल माय पेशेंट्स कि अगर नाम में जालिम है तो आप ऐसी चीजें क्यों यूज कर रहे हैं. So please do not go to quacks and do not go to chemists. Please come to a dermatologist, जो भी आपके पास nearest dermatologist है, आप उनसे करेक्ट ट्रीटमेंट कराएं. अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एंटीफंगल रेसिस्टेंस है, तो just go for a recheck. And whatever antifungal you are on, प्लीज मेक श्योर कि आप प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करें. जब तक आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मना नहीं करते कि हाँ आप दवाइयाँ बंद कर दीजिए, प्लीज दवाइयाँ बंद करिए, क्योंकि इससे ना तो आपको दोबारा प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बल्कि रेसिस्टेंस के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब वही दवाई आपको दोबारा काम नहीं करेगी. बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई डॉक्टर निहारिका झा, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी इस सेशन के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर सच सेशंस विद यू इन कमिंग टाइम्स. थैंक यू सो मच. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a good day. Goodbye. Bye.